present 30 participants having varied background. They may be from students, some of them are women entrepreneurs. Okay, okay. I think the seminar is aimed at those who really want to become an entrepreneur. જે લોકોને ઉદ્યોગ સાહસિક બનવાની ઈચ્છા છે, એસ્પિરેશન્સ છે, એવા લોકો માટે આ સેમિનાર છે. પણ એમાં કદાચ 2-4 જણા સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ પર હોઈ શકે, કંઈક કામ કરતા હશે એવું પણ અમને દેખાયું હતું. તો આજે જે વાત કરવાની છે, what I am going to talk about is becoming of an entrepreneur, and this is the whole journey, which is a beautiful journey, challenging journey, and we are going to talk about this journey on the whole. What is the journey about? What an entrepreneur has to do? What kind of activity, business he or she can do? તો આપણે આખી જર્નીની વાત કરીશું અને આને થોડું આપણે પાર્ટિસિપેટિવ બનાવવાના પ્રયત્ન કરીશું. એક રિક્વેસ્ટ એવી છે કે વસ્તુઓ જ્યારે હું તમને કહીશ ત્યારે તમારી પાસે જો નોટ અને પેન હોય તો તમારે લખી લેવાની છે, અને જ્યારે હું કહું કે તમે રિસ્પોન્સ આપો ત્યારે ચેટ બોક્સમાં એનો રિસ્પોન્સ આપજો, કારણ કે તમારી અમુક તૈયારી હશે પછી જે રિસ્પોન્સ આવશે ને, after you write down something which I am going to suggest, and then whatever you respond, I think that is what is required on chat box. Otherwise બધું chat box પર લખવાની જરૂર નથી. So well, I think you have all the excitement, aspirations to become entrepreneur, and let me tell you that જેટલા લોકો entrepreneur બને છે એના કરતા હજારો લાખો લોકો entrepreneur બનવા માટે તત્પર હોય છે, તૈયાર હોય છે, પણ એ લોકો બની શકતા નથી કારણ ઘણી બધી મૂંઝવણ હોય છે, ઘણી બધી બીક હોય છે, ઘણું બધું એ લોકોને કન્સ્ટ્રેન્ટ દેખાતા હોય છે, માટે નથી બનતા. એટલે આપણે આખી જર્ની જોઈએ આજે. તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ અવર જર્ની. આઈ થિંક કોરોના પછીની વાત કરીએ તો આપણે બધા ઘરમાં બેસી રહીને કંટાળ્યા હશે, ત્યારે ઘણા લોકોએ ઘણું બધું કર્યું હશે, પણ આજે હું તમને એક નવો ચાન્સ આપવા માંગુ છું કે ચાલો હવે લોકડાઉન ખુલી ગયો છે અને આપણે માની લઈએ, ધારી લઈએ કે એવી પરિસ્થિતિ નથી, પણ આપણે હવે એમાં છૂટ મળી ગઈ છે અને તમારે હવે તમારી કોઈ જર્ની શરૂ કરવાની છે. તમારે કોઈ બહારગામ, કોઈ દેશ, કોઈ પ્રદેશ, કોઈ ઇન્ડિયામાં ક્યાંક ફરવા જવાનું છે. તો આપણે એની જર્નીની વાત કરીએ છીએ, જેથી આપણું માનસિક અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે એકદમ બદલાઈ જાય. Can we go to the next slide? Yes, sir. તો તમે વિચારો કે તમારે કોઈ ટ્રાવેલ કરવાનું હોય, કઈ જર્ની કરવાની હોય, તો પહેલો સવાલ એ છે, યુ નોટ ડાઉન, વેર વુડ યુ લાઈક ટુ ટ્રાવેલ? તમારે ક્યાં જવું છે, કઈ જગ્યાએ જવું છે, કેવી જગ્યાએ જવું છે, તમે લખી નાખો એક જગ્યા. ઇન્ડિયાની હોઈ શકે, બહારની હોઈ શકે, તમારી જે ઈચ્છા હોય, તમારે જ્યાં ફરવા જવું હોય. So first write down where would you like to travel. We will have an English and Gujarati mix because only English may be difficult for some of the students. So Hindi is better or English Gujarati mix? Prutiben? Sir, Hindi and little bit of English would be fine, and little bit of Gujarati. I think majority of them will understand Hindi. Okay. We have so few first, I think all slides will be in English, so I'll try to mix language, Hindi English. So सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, लिख दिया? ओके. सेकंड क्वेश्चन, अब कैसे ट्रैवल करेंगे, कौन से रूट से, कौन से मोड से आप ट्रैवल करेंगे, विच इज द रूट थ्रू विच यू लाइक टू ट्रैवल. सम ऑफ देम routes are available like train, plane, motorbike. Like my son traveled to Ladakh on motorbike. See, some people would like to have a trekking and walking, some people go on cycling. So it is up to you to decide which route. So decide your route. किस रूट से आप जाना चाहते हैं, ट्रेन से, बस से, साइकिल से, प्लेन से, कार से, स्कूटर से, मोटरबाइक से. कर लिया आपने? थर्ड थिंग इज व्हाट इज द बजट प्रोविजन. व्हाट इज द बजट प्रोविजन, कितना पैसा खर्चा करना चाहते हैं. 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, कितना अभी है कि नहीं पैसा, इसकी चिंता नहीं करना. Don't worry, but just make the provision, because now you may be knowing that travel agencies are also giving you EMIs. तो हफ्ते से भी आप घूमने जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. फाइनेंसिंग इज इजी. Okay. And the last part that is most important, ये जाने से पहले आप रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या तैयारी करनी है. तो अब मुझे जानना है आपके क्या आप क्या क्या तैयारी करेंगे इसके लिए. आप जहां जाना चाहते हैं, चाहे दार्जिलिंग जाना चाहते हैं, जहां हांगकांग जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, प्लेन से जाना चाहते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं, 25,000 का बजट है, 50,000 का बजट है, तो तैयारी क्या क्या करेंगे, व्हाट विल बी द प्रिपरेशंस
tell me on chat what are the preparations that you will do. I want to cover so many things in limited time, so try to be very active and your response should come immediately. You can use chat box for sending your responses. All the participants आप chat box का घूमने जाने के लिए क्या प्रिपरेशन करेंगे बताइए? खुद भी जब आउट हो जाए बोल पाते तो. Okay, okay, sir. Sure, fine. So no response. You don't want to travel? घर में बैठे रहो छे. Everybody. It's a great experience. I've traveled 40 countries, as you already know. Bag ready? Yes. Packing bag. Okay. Sir, you are able to read it. क्या-क्या चीजें ले जाएंगे? Documents, medicines, बुकिंग टिकट्स प्रिपरेशन करेंगे, कैसे टिकट बुक करना है. अगर आपको पता नहीं है तो ट्रैवल शेड्यूल, नाश्ता भी ले जाएंगे. हाँ, गुजराती लोगों ने कोई नाश्ता के बिना चलेगा ही नहीं, टेबला चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि बाहर होती है. अब दिस इज ए कंफर्ट जोन. भी हम बाहर जाते हैं फिर भी गुजरात को नहीं भूलते हैं, तो ये कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं आप. इसका मतलब ये हुआ यू वांट टू स्टे इन योर ओन कंफर्ट जोन, यू डोंट वांट टू गो. I travel and I try all foods, Ethiopian food, Mongolian food, barbecue, सब में ट्राई करता हूँ. डे वाइज प्लानिंग, कैमरा वेरी गुड, ATM ऐसा. Okay, so one part is anyone? Okay, so let us go ahead. So one part is you'll be preparing what you need, why you need, right? मोबाइल भूल गया. मोबाइल तो चाहिए ही, बिना मोबाइल तो नींद भी नहीं आती है, तो बाहर तो कैसे जाएंगे. ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज whatever the place is, depending on whether it is a national place or international place, you will try to collect all your luggage, medicine, visa, travel agency, ticketing. अगर आपको नहीं पता है तो ट्रैवल एजेंट का एक हेल्प लेंगे, बजट करेंगे, घूमने जाएंगे और आपकी जर्नी चालू हो जाएगी. समझ लीजिए अभी आपने सब तैयारी कर दी है, आपके दोस्त साथ होंगे, अकेले शायद नहीं जाना चाहते हैं, तो यू विल हैव अ टीम विद यू टू एंजॉय. सो ऑल ऑफ यू विल ट्रैवल. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, after you travel and come back, what will be your experience, what will you learn, what will you gain? आप ट्रैवल करके आएंगे, जहां भी आप जाना चाहते हैं, जो भी आपका डेस्टिनेशन था, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, क्या गेन करेंगे, वो बताइए, चैट बॉक्स में बताइए. जहां पे भी घूमना चाहते हैं, कोई जंगल में जाना चाहता है, कोई ट्रैकिंग में जाना चाहता है, कि हिस्टोरिकल प्लेस में जाना चाहता है, रिलीजियस प्लेस में जाना चाहता है, तो क्या मिलेगा आपको? वेरी गुड. कल्चरल एंड नॉलेज एक्सपीरियंस, वंडरफुल. आई थिंक ट्रैवलिंग इज द बेस्ट एक्सपीरियंस टू नो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल, एक्सपीरियंस टूरिंग ए न्यू प्लेस. अब तक हम काफी लोग, गुजराती लोग, स्टूडेंट लोग अभी तो घूमते रहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है दूसरी जगह जाने को. जब मैं अमेरिका गया था तो पहली बार जब न्यूयॉर्क की ट्रेन में बैठा तो इट वाज अ शॉक ऑफ माय लाइफ. हर एक टाइप के लोग मिलते हैं, काले धोले कपड़े वाले, आधे कपड़े वाले, पढ़ते वाले, एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन. सो इट्स अ डिफरेंट कल्चर. वेरी गुड. हैप्पीनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मेनी न्यू मेमोरीज, राइट? नेक्स्ट स्लाइड. Next slide. So I think most important as far as the journey is concerned, you can say you have an enjoyment. जाने से पहले, जाते टाइम इतना एक्साइटमेंट होता है, आपको एक्सपोजर मिलता है, कल्चर का मिलता है, जगह का मिलता है, हिस्ट्री का मिलता है, लोगों के लिए मिलता है, और पूरी प्रोसेस में आप इतने एंगेज हो जाते हैं, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या करेंगे, फोटो क्या करेंगे, नाश्ता कहाँ करेंगे, तो एक एंगेजमेंट हो जाता है. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनरिच योरसेल्फ with new experience and know the new world outside, right? So this is what entrepreneurship can give you. When you become an entrepreneur, this is what it is. It is an enjoyable journey, though challenging. लेकिन मजा कब आता है? जब नई नई चीज जाते हैं. हमारे घर से बाहर जाना है, हमें हमारे कंफर्टेबल जोन से बाहर जाना है, हमें अपने आप को तैयारी करने में एक्सपोजर करना है, लोगों को मिलना है, मार्केट को देखना है, बाहर जाके देखना है. और ये करते करते कोई टेंशन रख के अगर काम करे तो ना एंजॉयमेंट मिलेगा ना एक्साइटमेंट मिलेगा.
तो even entrepreneurial journey before you start has lot of enjoyment and excitement. And if you enjoy that journey, I think the whole journey will really become enriching for yourself. तो जैसे ये फॉरेन जर्नी, नेशनल जर्नी, मैंने भी 40 देशों में ये काम किया है, 40 देशों में घुमा हूं, तो मुझे इतनी मजा आई है, इतना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, इतने अलग अलग लोगों को मिला, आज एक मैच्योरिटी बन गई है। काका साहब कालेलकर थे, उन्होंने रखड़वानी मजा करके एक चौपड़ी लिखी थी, रखड़वानो आनंद। तो એમાં એમણે એ જ કહ્યું હતું કે સૌથી સારામાં સારો જો અનુભવ હોય કોઈનો તો ટ્રાવેલિંગનો અનુભવ છે। તો તમે આ કામ જે જર્ની છે, જર્ની આખી સમજવાની જરૂર છે। તો આ જર્ની આપણે કઈ રીતે શરૂ કરવી, ક્યાંથી શરૂ કરવી? તો પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે તમારે ક્યાં જવું છે, કયું ડેસ્ટિનેશન, તમે કયું નક્કી કર્યું હતું? કોઈએ નક્કી કર્યું હશે કે દાર્જિલિંગ જવું છે, કોઈએ બોમ્બે કીધું હશે, કોઈએ દિલ્હી કીધું હશે। તો પહેલો પ્રશ્ન તમારા એન્ટરપ્રેનર બનવાના છે કે જર્ની ક્યાં જવું છે, કેવો ઉદ્યોગ કરવો છે, ક્યાં પહોંચવો છે। એમાં જરૂરી નથી કે તમે કેટલા એક મિનિટ આવજે, જરૂરી નથી કે અહીંયા તમે આ નક્કી કરો કે શું કરવું છે, પણ જર્ની શરૂ કરવી છે એવી માનસિક તૈયારી કરવાની છે। બીજું કે એની તૈયારી કઈ રીતે કરવી એની આપણે વાત કરીશું। તો આ આખી જર્ની જ્યારે થાય તો આપણને કેવા અનુભવ મળે એની વાત કરું। તો સૌથી પહેલો તો જે તૈયારી કરવાની છે એમાં પ્લાનિંગ ને ઓર્ગેનાઇઝેશન આવી જાય છે કે તમે જવા માટે જે પ્લાનિંગ કર્યું, ઓર્ગેનાઇઝેશન કર્યું, that is how you will be planning for your entrepreneurial journey। क्या करना है, क्या गोल है, क्या विजन है, कहाँ जाएंगे, क्यों जाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, तो उसकी बात हम डिटेल में ज्यादा करेंगे आगे। दूसरा है उससे आपको विजुअलाइजेशन, मतलब जहां जाएंगे वो जगह कैसी होगी, वहां क्या मजा आएगा, हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो आप विजुअलाइज करेंगे कि एंटरप्रेन्योर बनने में क्या होने वाला है, मैं जहां जाऊंगा मुझे क्या मिलेगा, कहाँ मजा आएगी, किस तरह से मैं काम करूंगा, मेरा रोल क्या होगा। तीसरी चीज है हम जाएंगे, सब नई चीज होगी तो प्रॉब्लम भी आएगा। नई नई चीज में खाना नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है, प्लेन टाइम पर नहीं होता है, वीजा में प्रॉब्लम होता है, तो एडजस्ट करना एनवायरमेंट के हिसाब से। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे नए अनुभव आते हैं, ऐसे ऐसे नई एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो एंटरप्रेन्योर जर्नी व्हेनेवर यू विल स्टार्ट यू विल एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग। तो ऐसा नहीं है पूरा एक प्लान फिक्स ही होगा कि इसी तरह से जाएंगे, जो भी सिचुएशन होगा इसी हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट करते जाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी आप एक सेल्फ मैनेज करना सीख जाएंगे, अपने आप जैसे जर्नी में गए इस तरह से सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप सीखना, कोई कुछ नहीं सिखाने वाला है, आप अपने आप ही सीखेंगे। हाँ, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने से पहले आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, उसके लिए आपको हेल्प लेनी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, मेंटर करना है। लेकिन ये पूरी जर्नी आपकी है, पूरी मजा आपकी है, पूरा प्रॉफिट आपका है, तो आप ही को सब कुछ करना है। हाँ, बिफोर कोई ऐसा नहीं करता है चलो ट्रेन में बैठ गया और चलो जहां पहुंचेंगे वहां पहुंच जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे तो नहीं होता है, आप ऐसे जर्नी भी नहीं करते। तो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, लेट अस गो टू नेक्स्ट। तो सबसे पहला नाउ सवाल ये होगा कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं या नहीं, मुझे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या जरूरी है। तो इसको हम कहते हैं व्हाट इज योर मोटिवेशन टू बिकम एंटरप्रेन्योर। तो हमारे एक स्टडी किया गया है, उसमें बताया जाता है, उसमें कहा जाता है कि मैं उस पर ज्यादा बात करूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय मनी। यस, मनी तो मिलना ही चाहिए, पैसा कमाना है, लेकिन सबसे पहला फैक्टर है अचीवमेंट, कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये जो नौकरी करता हશે ને એમ થાય કે નોકરીમાં કઈ મજા નથી। હવે हाउसवाइफ હશે એને એમ થશે, वो समझती है कि अरे घर में बैठे बैठे ये बोर हो गए, अब बच्चे बड़े हो गए, हस्बैंड दीदी हो गए, तो मैं आखिर क्या करूं, तो मैं अपना कुछ काम करूं। तो एक अंदर से अगर आवाज आती है कि मैं कुछ अपना करना चाहता हूं, तो ये अचीवमेंट इज ए गुड फोर्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सेकंड इज द रिकॉग्निशन, कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा तो मुझे कुछ रिकॉग्निशन मिलेगी, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मेरा नाम बनेगा, ये भी आपका एक इच्छा हो सकती है। तीसरा होता है सोशल स्टेटस या तो चैलेंज। कई लोगों को ऐसी है कि मुझे कुछ चैलेंज नहीं दे रहा है, मैं इतना रूटीन काम कर रहा हूं, अभी जो नौकरी कर रहा हूं, अभी जो काम कर रहा हूं। अब जब हम गांव में जाते हैं तो गांव वाले लोग कहते हैं कि अरे साहब हम गरीब है, हम बरस है, हमारे कुछ होता ही नहीं है, तो ये चैलेंज लेना चाहते हैं।
कुछ चैलेंज लेना चाहता है। तो दिस आर ऑल पुल फैक्टर। पुल फैक्टर मीन अंदर से आपको कुछ होता है। तीसरी एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योरशिप, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट, आई डोंट वांट टू वर्क अंडर। गुजराती लोगों को ये बहुत है कि कोई डांटेगा, अच्छा बॉस होगा, डांटेगा तो बोलेगा तेरी नौकरी तेरे घर, मैं अपने आप करूंगा। तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो ये एक नेचर है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है। तो थोड़े ऐसे फैक्टर है जो पूल फैक्टर है, मतलब से अंदर से आवाज आती है। तो आपको ये देखना है कि अंदर से क्या आवाज आती है, अंदर से आपको क्या है, और वो अगर आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो दैट इज द बेस्ट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट फैक्टर फॉर एंटरप्रेन्योर। दूसरे फैक्टर है, स्लाइड अर्धी दिखाई छे, बराबर नहीं दिखा दी श्रुतिबेन। दूसरे फैक्टर है जो पुश फैक्टर है, मतलब कि आपको बाहर से फोर्स कर रहे हैं। अभी आप नहीं, ये नहीं, आगे वाला। तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन, जैसे मैंने कहा कोई जॉब कर रहा है वो डिससेटिस्फाई है, और इसको हम कहते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस, थोड़ा डिस्टर्बेंस होना। हम लोग जब पहली बार ये एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया था तो हमारे जो गुरु थे उन्होंने बहुत अच्छा काम कहा था कि जब लोग आ रहे थे 79-80 की बात कर रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कैसे पता चलेगा ये आदमी एंटरप्रेन्योर बन सकता है कि नहीं। तो हम उनको 2 सवाल पूछते थे। उन्होंने कहा कि पहला सवाल ये कि क्या आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, उससे हैप्पी है। और दूसरा सवाल कि आप क्या बॉस से हैप्पी है, और नहीं है तो क्या करेंगे। तो जो लोग कहेंगे कि मैं बॉस खुश हूं, हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं, मैं मजे में हूं, तो उनको हम बाहर निकाल देते थे कि आप अभी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार नहीं है। अंदर से कुछ डिस्टर्बेंस अगर होगी तो आप कुछ करेंगे। तो एक डिस्टर्बेंस की सवाल है। अनएम्प्लॉयड पीपल, दे आर गुड रॉ मटेरियल टू बिकम एंटरप्रेन्योर। अनएम्प्लॉयमेंट को कोई रिस्क फैक्टर कम होता है, कई लोग रिटायर होते हैं, उनको भी ये एंटरप्रेन्योर है। हमने काफी रिटायरमेंट लोगों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए जो पहले से रिटायर हो जाते हैं उनके लिए किया है। सोशल स्टेटस में सोशल डेथ पे हो जाते हैं, किसी का डेथ हो जाता है, फादर से उनकी फैक्ट्री थी, उनका डेथ हो गया तो फैक्ट्री बननी पड़ी। डिवोर्स है, विडोज है, जो सिंगल मदर है, उनको इकोनॉमिक प्रेशर है, तो वो भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार है। बाहर से कोई एनकरेज कर रहा है, कोई प्रोफेसर कर रहा है, कोई दोस्त कर रहा है, कोई मेंटर कर रहा है, तो वो बाहर के फैक्टर है। या तो कई लोगों को ऐसा है कि सरकार के सब सपोर्ट मिल रहे हैं, अभी स्टार्टअप की लोन मिल रही है, स्टार्टअप में सब्सिडी मिल रही है, स्टार्टअप में प्रोटोटाइप के लिए पैसा मिल रहे हैं, तो भी मैं करना चाहता हूँ, बट इट इज द नेसेसिटी। तो ये 2 फैक्टर मिला के जो मोटिवेशन है वो आपको देखना है। जैसे मैंने कहा, जाने से पहले तैयारी करते हैं कि मुझे ये क्यों करना है, मेरा कौन सा फोर्स है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, कितनी हद तक ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, इस पर डिपेंड करता है। इसके लिए हमारे पास काफी टूल है, आपकी कौन सी इच्छा है, कौन सा मोटिवेशन है, कौन सा फोर्स है, वो हम टेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट फैक्टर। नाउ विल टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट साइकिल। ये जैसे अपने जर्नी की बात की, पूरा साइकिल था, तो ये पूरा साइकिल कौन सा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चा जब कंसीव होता है, जब मदर होती है, उनको बच्चा कंसीव होता है, तो सबसे पहला है, नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहला है कि कंसीव करना, तो एंट्री इनटू द बिजनेस, यही प्रॉब्लम है। जर्नी तो शुरू कर दे लेकिन एंट्री नहीं कर पाते हैं। कई लोग सोचते हैं मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, अगले साल अगले साल अगले साल, वो कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं कंसीव हो रहा है। तो ये जब कंसीव हो जाएगा, मतलब आइडिया एंड आपकी जो अचीवमेंट नीड है, वो दोनों जब मैच हो जाएगी, पर्सनल नीड जो है और एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी है, वो जब मीट करेंगे, अभी आपका जो जर्नी है वो शुरू होगा, वहां कंसीव होता है। दूसरा स्टेज है, काफी लोग कहते हैं मैं बनना चाहता हूं, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर सोचते हैं तो बन नहीं जाते। जब तक आपका इकोनॉमिक एंटरप्राइज, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसिंग हो, ट्रेडिंग हो, ऑनलाइन हो, ई कॉमर्स हो, जो भी हो, वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाते, जब तक वो शुरू नहीं कर पाता है, तब कोई आपको एंटरप्रेन्योर नहीं कहेगा। और ये शुरू करने के लिए आपको सपोर्ट एंड रिसोर्स की जरूरत है, तब आप पर्सन से एंटरप्रेन्योर बनते हैं और आपका बर्थ होता है, अब जन्म होता है। और ये सब करने के लिए आपको आपका बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। कौन सा रिसोर्सेज चाहिए, कौन सा मशीन चाहिए, कौन सा पैसा चाहिए, कहाँ बेचूंगा, कितना बेचूंगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो ये जब आप विजुअलाइज करेंगे तब आपका, तो ये आपको अपना प्लान बनाना
बड़े अभी दिमाग में मैं कहूंगा ये सब जो अभी दो स्टेप है ना, शुरू में तो सब मेंटल प्रोसेस है, तब जाके अब आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसकी टेस्ट होने वाली है। काफी एक सवाल ये भी है, वन क्वेश्चन ये भी है कि काफी लोग शुरू करते हैं कर उसके बाद में फेल हो जाते हैं। फेलियर रेट हाई है, स्टार्टअप में हाई रेट है, एंटरप्रेन्योरशिप में 60-70% है, स्टार्टअप में तो करीब 20-30% सक्सेस होते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जब तक डेवलप नहीं होती है, आपकी अंदर की खूबी जब तक डेवलप नहीं होती है, तो ये काम शुरू हो जाता है लेकिन सफल नहीं होता है, सरवाइव नहीं होता है, सस्टेन नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है। तो यहाँ आपकी स्किल्स, मैनेजरियल, टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज, तो ये नर्चरिंग, जैसे मदर फादर नर्चर करते हैं, ऐसे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मेंटर, स्टार्टअप मेंटर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके साथ रहेगा, आपको नर्चर करेगा, आपको मोटिवेशन देगा, आपको गाइडेंस देगा, आपको जहां प्रॉब्लम होगा वहां हेल्प करेगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, आपके अंदर की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट खूबी को डेवलप करने के लिए काम करना पड़ेगा। काफी लोग ये नहीं कर पा रहे એટલે આપણે જેને કહેવાય અડધું કપાઈ જાય, હું થોડી પછીથી વાત કરીશ। અને છેલ્લે એન્ટરપ્રાઇઝ મેનેજમેન્ટ બધું શરૂ થઈ ગયું, પણ સસ્ટેનેબિલિટી ગ્રોથ એટલે શરૂઆતમાં ચાઇલ્ડહુડ, આપણે નાનું બાળક આવે ને ત્યારે ટીथिंग प्रॉब्लम આવે, जब बच्चा होता है तो उसको दांत जब टीथ आते हैं तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है, तो मदर फादर घबरा जाते हैं, तो दादा दादी पेरेंट्स कहते हैं चिंता नहीं करो टीथिंग प्रॉब्लम है। तो सबको टीथिंग प्रॉब्लम है, सब एंटरप्रेन्योर के शुरुआत के प्रॉब्लम सेम है, मार्केटिंग नहीं हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में तैयार किया जाएगा। फिर उसके बाद आप एडल्टहुड में पहुंचेंगे, उसके बाद मैच्योरेशन में पहुंचेंगे, तो ये भी एक जर्नी है पूरी, और आप फुल प्लेज एंटरप्रेन्योर बनेंगे तब आपके पास पैसा होगा, नाम होगा। तो ये पूरी एक जर्नी है, तो ये डेवलपमेंट साइकिल है। जैसे हमने बताया वो जर्नी करते हैं आप, एक के बाद एक स्टेशन पर आते हैं, एक के बाद एक जगह करते हैं, एक के बाद एक एंजॉय करते हैं, तो यही ये डेवलपमेंट साइकिल है। तो डेवलपमेंट साइकिल हम कैसे तय करेंगे, कैसे उससे से पास थ्रू होंगे सक्सेसफुली, इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अभी एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, बड़े बड़े लफ्ज है, कई बार तो ये स्पेलिंग भी बराबर नहीं पता था लोगों को, तो इसको मैं सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। एक तो है एंटरप्रेन्योर, मतलब कि यू एंटरप्रेन्योर पर्सन, हु आर यू ए स्टूडेंट, आर यू अ हाउसवाइफ, आर यू अ टेक्निकल पर्सन, आर यू अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट, आर यू अ रूरल पर्सन, आर यू ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयड, आप बिजनेसमैन के बैकग्राउंड वाले हैं। तो एक तो आदमी, व्यक्ति, पर्सन है, इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब कि जो बिजनेस करने चाहते हैं, एस्पिरेंट है। दूसरा है जो कुछ भी वो करना चाहता है, चाहती है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज, दैट मीन्स द प्रोजेक्ट। अब सवाल आता है कौन सा प्रोजेक्ट, कैसा प्रोजेक्ट, कितना इन्वेस्टमेंट वाला, कहां लगाएगा, तो विच टाइप ऑफ एंटरप्राइज ही और शी वुड लाइक टू डू, एंड व्हाटएवर हैपेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज। मतलब एंटरप्रेन्योर जब प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है, प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है, तो फिर अपने आप पर आता है कि ये तो मेरे बस की बात नहीं, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ये मार्केटिंग प्रॉब्लम है, ये टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है। तो ये दोनों के बीच में जो होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे हमें जर्नी में एक डेस्टिनेशन तय कर लिया था कि हम बंबई पहुंचेंगे, यूएसए पहुंचेंगे, वियतनाम पहुंचेंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस जर्नी है, वो जर्नी कभी पूरी नहीं होती। आप एक बार सफल होंगे, फिर दूसरा प्रोजेक्ट, फिर तीसरा प्रोजेक्ट, डाइवर्सिफाई करेंगे, नया प्रोजेक्ट करेंगे, इनोवेट करेंगे, तो ये जर्नी कंटिन्यूअस रहती है। तो मैं इसके बारे में एक छोटी सी आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूं, मैंने हाथ से बनाया हुआ है, दिख सकता है, देखना है ये Puthivan, is it visible? Hello? Hello? Okay, छोड़ दीजिए। Okay, you can see some of you. So see, एक तरफ एंटरप्राइज है, और ये जो एंटरप्रेन्योर आप और एंटरप्राइज है, वो एक एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, मतलब कि आसपास क्या चल रहा है, तो ये तीनों के बीच में जो हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव रिस्पांस टू एनवायरमेंट। आप जहां है, गांव में है, सिटी में है, उसमें एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट मार्केट है, टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट है, फाइनेंस है, लीगल रूल है, आपके दोस्त है, सोशियो कल्चरल फैक्टर है, ये सबको ध्यान में रखते हुए एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट बी डेवलप इन आइसोलेशन। आपके साथ जुड़ा हुआ है, फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज दो जो साइड है, उसको दोनों को मिलाना है।
तो अगर ये देख लिया है तो मेरा आपका नेक्स्ट सवाल ये है कि आपको अगर सफलता पानी है, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, टेल मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंटरप्रेन्योर इज इंपॉर्टेंट और एंटरप्राइज इज इंपॉर्टेंट? आप रिस्पॉन्ड दीजिए मुझे चैट पर, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर इंपॉर्टेंट है या एंटरप्राइज इंपॉर्टेंट है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने जवाब। व्हाट डू यू थिंक, एंटरप्राइज इज मोर इंपॉर्टेंट, सक्सेस के लिए बोलता हूँ, या एंटरप्राइज इज मोर इंपॉर्टेंट? एंटरप्राइज इज इंपॉर्टेंट मतलब कौन सा बिजनेस करना है वो इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर इज मोर, यश कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर इज मोर इंपॉर्टेंट, विवेक भाई कह रहे हैं एंटरप्राइज इज मोर इंपॉर्टेंट, एंटरप्रेन्योर इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, सो एक एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, पैसा भी है, लेकिन वो ऐसा प्रोजेक्ट चुनता है कि जिसकी फिजिबिलिटी नहीं है, जिसका मार्केट नहीं है, तो क्या होगा? अच्छा एंटरप्रेन्योर है फिर भी फेल हो जाएगा। एक बहुत अच्छा एंटरप्राइज है, ई मार्केटिंग वाला है, नया प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के पास उसकी लिए कॉम्पिटिबल स्किल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो भी वो फेल हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, नो एंटरप्रेन्योर इज गुड और बैड, no enterprise is good or bad, it is the right combination and synchronization of entrepreneur and enterprise which leads you to success। आपको सफलता के लिए दोनों को मिलाना है। मैं हमेशा हंसता हंसता कहता हूं कि આપણે બંને ની कुंडली बनावानी चाहिए। कुंडली बनाते हैं, पता है शादी होती थी पहले, अब तो आप लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन शादी होती थी तो उसमें कौन सा ग्रह है कहाँ है, और वो कुंडली में देखा जाता है कि मंगल ग्रह क्या बैठो थे, तो तुम्हारे जोवानो छे कि मंगल का ग्रह कहाँ बैठा है, आपके अंदर है या बिजनेस के अंदर है। तो ये दोनों कुंडली बनाना है, आपकी कुंडली, एंटरप्राइज की कुंडली, और वो जो आप एनवायरमेंट के अंदर कर रहे हैं वो एनवायरमेंट कैसा है, क्योंकि आप एनवायरमेंट को बदल नहीं सकते। तो देखना है कि एनवायरमेंट के अंदर से अपॉर्चुनिटी क्या है और मेरे लिए सबसे अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी है, वो ढूंढ के कॉम्बिनेशन इंटरेक्शन बिटवीन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज एंड एनवायरमेंट, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आप इसको कैसे देखेंगे, किसे करेंगे, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो रिमेंबर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड वी स्टार्ट? शुड वी स्टार्ट फ्रॉम एंटरप्राइज फर्स्ट और शुड वी स्टार्ट फ्रॉम एंटरप्रेन्योर फर्स्ट? फोन ले तो आप लोग मानस लगे तो बताओ, एंटरप्रेन्योर से शुरू करेंगे या एंटरप्राइज से शुरू करना है? पहले बिजनेस के बारे में बात करना है, पहले आपके बारे में, आप एंटरप्रेन्योर कैसे बात करेंगे? एंटरप्राइज, जब तक आप तैयार नहीं है, जब तक आपने तय नहीं किया है क्या करना चाहते हैं, तब तक कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों की बात करने वाले हैं। ओके, वेरी गुड, सम ऑफ यू आर सेइंग एंटरप्राइज, सम ऑफ यू आर सेइंग एंटरप्रेन्योर, सो वी विल टॉक बोथ अबाउट इट। लेट अस गो टू द नेक्स्ट। पृथ्वी नेक्स्ट। सो ये जैसे हमने स्टेशन बनाए थे, ये मैं क्विकली जाऊंगा, थोड़ा कुछ मैंने बता दिया है कि सबसे पहले रियलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी आती है, और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जैसे मैंने कहा कंसीव करना, आइडिया जनरेशन। काफी आपके दिमाग में आइडिया तो रोज आते हैं, बहुत आइडिया आते हैं, लेकिन उसको स्क्रीन करना और सिलेक्ट करना, ये सबसे पहला स्टेशन है। अगर ये स्टेशन आपने पार कर दिया, फिर आपकी जर्नी आराम से धीरे धीरे जाएगी। लेकिन काफी लोग यहीं पर अटक जाते हैं, उनकी जर्नी शुरू ही नहीं आती है। दूसरा स्टेशन है ये जानने के बाद कंसोलिडेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो मोबिलाइज करना। ये जरूरी नहीं हर बार आप हेल्प बाहर से करेंगे, आपके पास ज्यादा कुछ रिसोर्सेज है। एक मिसकंसेप्शन ये है कि एंटरप्रेन्योर ऐसे सोचता है कि मुझे पैसा मिल जाएगा, ये पैसा सबसे बड़ा रिसोर्स है। हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, द रिसोर्सेज दैट यू नीड, व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इन एंटरप्राइज इज योर स्किल, your ability, your competency, your ambition, your career, your life, your commitment, your passion, ये इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ये है तो पैसा तो फॉलो करेगा ही। स्टार्टअप में कहा जाता है कि डियर फ्रेंड्स, डोंट चेज द मनी, चेज द मार्केट, द मनी विल फॉलो यू। तो ये कंसोलिडेशन ऑफ रिसोर्स करना, बिजनेस प्लान करना, उसके बाद इंप्लीमेंट करना, जहां लोन प्रोसीजर, लोन कैसे लेना है, लीगल क्या है, प्रोसीजर क्या है, स्टार्टअप कैसे होने वाला, इसकी बात आएगी। ये करने के बाद चौथा स्टेशन आएगा, मैनेजिंग एंड रनिंग योर एक्सपर्टाइज, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, मैनेजिंग इट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कैसे करना है। शुरू में लोग मार्केट करते हैं, सब करते हैं, सेल हो जाता है। स्मॉल इंडस्ट्री का एक प्रॉब्लम है, सेल तो हो गया लेकिन साहब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अब रिकवरी नहीं आ रही है, तो ये सब समझना पड़ेगा। तो ये
शुरू करने से पहले अगर आप ये सब मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं, दूसरे एंटरप्रेन्योर से समझ लेते हैं, फेलियर से समझ लेते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से समझ लेते हैं, तो यू विल बी रेडी प्रिपेयर टू नो कि हाउ टू फेस द म्यूजिक, हाउ टू फेस द सिचुएशन। हाँ, कई चीज ऐसी होगी जो उसी टाइम सॉल्व करना होगा। एंड देन कम्स द सक्सेस एंड ग्रोथ। ये बात हो गई है सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिट, ग्रोथ। और अब के जमाने में जैसे आज हुआ है, ये करने के बाद जरूरी है कि सस्टेन इन टर्बुलेंट टाइम, कोपिंग, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया तो इनोवेट करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, नई नई चीजें करनी पड़ेगी। तो ये सब जो स्टेशन है वो सब स्टेशन पर आपको जाना है। हम सब स्टेशन की बात आज कर पाएंगे नहीं, देखते हैं, मैं आपको सबका आइडिया दूंगा कि मेरा आज ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एंटरप्रेन्योर के लिए तैयार करना। आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक बार बन जाए कि मुझे बनना ही है, और एक कच्चा पक्का आइडिया हो जाए कि मैं कौन से बिजनेस में जाना चाहता हूँ, कैसा प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। अगर इतना होगा तो धीरे धीरे जर्नी आगे आएगी। फिर वी कैन गाइड यू, यू कैन टेक दिस। सो आई विल गिव यू सर्टेन टिप्स हाउ टू डू दिस। शैल वी गो टू द नेक्स्ट? So what do entrepreneur do? Entrepreneur खाली बिजनेस नहीं करता है, entrepreneur make a significant difference। सब लोग हमारे इंडिया में पैदा होते हैं, खाना खाते हैं, बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, नौकरी करते हैं, जिंदगी पूरी हो जाती है। तो आप सब तो यंग है, आप तो एस्पिरेंट है, तो आपको ये देखना है कि वेयर यू वांट टू मेक ए डिफरेंस, कहाँ आप फर्क करना चाहते हैं, उद्योग में, प्रोडक्ट में, लोगों के लिए, समाज के लिए। सो यू नीड टू क्रिएट एंड इनोवेट। कुछ हटकर बात करना है, कुछ नई बात करनी है। चाहे आप कॉफी शॉप ही करें तो भी उसमें नया क्या करेंगे, आप रेस्टोरेंट भी करें तो भी नया क्या करेंगे, थीम रेस्टोरेंट करेंगे, नई आइटम रखेंगे, नई तरह से आपके स्टूअर्ड को काम करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। अभी मैं एक वो वाघ बकरी चाक की लॉन्च है, वहां में उनसे पीयूष भाई से बात कर रहा था। वो कहते थे साहब मुझे अच्छे एमबीए लड़के दो, मुझे काम है। मैंने बोला एमबीए लड़के आपकी चाय की लॉन्च में थोड़ा चाय सप्लाई करेंगे? बोले नहीं, हमें चाय सप्लाई करने के लिए नहीं चाहिए, हमें ये आदमी चाहिए कि ताकि लोगों के साथ, कस्टमर के साथ बात करे, उनको एंगेज रखे, उनसे जाने क्या चाहिए। तो अभी ये जरूरी है कस्टमर को जानना। दे स्पॉट एंड एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी। आप कहते हैं हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप अगर आसपास देखें तो आज कोविड के जमाने में भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है। तो कई लोग आंखें बंद करते हैं, तो मैं हमेशा हंसते हुए कहता हूं कि आपको नया चश्मा लगाना है, अपॉर्चुनिटी देखने का चश्मा। तो नई नई में जहां घूमते हैं वहां अपॉर्चुनिटी देखिए। ये बन सकता है, पंखा बन सकता है, चौक बन सकता है, ये बन सकता है। तो ये सोचिए, फाइंड रिसोर्सेस, डू नेटवर्किंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एंटरप्रेन्योर शुरू शुरू में बेचारा अकेला घूमता रहता है, अकेला काम करता है, उसके सर पे इतना टेंशन, इतना रिस्क होता है। क्रिएट योर ओन टीम, ट्राई टू डेवलप योर फ्रेंड एंड हु कैन हेल्प यू। हम गांव में एक बार काम कर रहे थे, इलिटरेट महिला थी, उनको पता नहीं था बिजनेस प्लान कैसे बनाए, कैलकुलेशन कैसे करना। तो उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो उनके साथ नेटवर्क कर दिया। वहां गांव में जो बिजनेसमैन थे उनके साथ नेटवर्क किया, सरपंच के साथ नेटवर्क किया। तो ये नेटवर्क करिए, आप आसपास के लोगों को काम करिए। आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको बिजनेस में कौन कौन हेल्प करेंगे, कौन से आपके फ्रेंड जो बैंक में है, बिजनेस में है, ट्रेडिंग में है। तो ये नेटवर्क बनाइए। मैनेज रिस्क, दे डोंट अवॉइड रिस्क, तो लेना ही है। आपको अगर तैरना है तो पानी में कूदना तो पड़ेगा, बट यू टू प्लान एंड मैनेज द रिस्क। रिस्क कौन से वो देखना है, मैं आपको रिस्क के बारे में बात करूंगा। एंड देन कंट्रोल एंड मैन। आप जब घोड़े पर सवार है तो घोड़े का लगाम आपके हाथ में होना चाहिए। इसी तरह से बिजनेस का लगाम आपके हाथ में होगा। गुजराती में जेने આપણે કહેવાય ને કે આપણે हेलो, तो આપણે ચોટલી પકડવાની છે, એ બિઝનેસની ચોટલી આપણા હાથમાં હોવી જોઈએ। તો બિઝનેસનું ઇન્ડસ્ટ્રી અને બિઝનેસની ખાસિયત શું છે સમજવું। જેમ કે બિઝનેસ, રેસ્ટોરન્ટ બિઝનેસમાં તમે જુઓ તો બે પ્રોબ્લેમ હોય છે, લેબરનો પ્રોબ્લેમ હોય છે, મેનુનો પ્રોબ્લેમ, વેસ્ટેજનો પ્રોબ્લેમ અને વેરાયટીનો પ્રોબ્લેમ। બધું બંધ થઈ જાય છે કારણ કે કેશ અને ઇન્વેન્ટરી એટલી બધી થઈ જાય। તો જે આની ચોટલી છે એ લેબર ઉપર છે, વેસ્ટ ઉપર છે અને क्या हो गया, स्लाइड चली गई। एनीवे आई विल कंटिन्यू। सो ये आपको देखना है कि ये कैसे किया जाए। तो अब सवाल ये है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट करना है, कैसे प्रोजेक्ट का आइडिया आएगा, कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी 5-10 मिनट, अब टाइम मेरे पास कम है तो मैं 5-10 मिनट के लिए आपको ये बताऊंगा कौन सा प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड?
Sir, just a second. There was somebody who is presenting, so in between it got disconnected. Give me 2 No minutes. problem. So I'll continue. Just 2 minutes, sir. तो मेरा सवाल आप सब लोग से ये है कि पहला तो मुझे ये जवाब दीजिए आप कि आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, बिजनेस सिलेक्ट करना है, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये जवाब दो, जवाब दो, कॉम्पिटेंस, इसको जाने दो, नेक्स्ट, इस पर बाद में आता हूं मैं। हाँ, बस ये। सो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, डिफाइन। चलो आप बताओ, आप बिजनेस सिलेक्ट करेंगे, हम जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कैसे तय करते हैं ये कपड़ा खरीदना है? आप डिजाइन देखते हैं, कलर देखते हैं, स्टाइल देखते हैं, क्या देखते हैं? तो व्हाट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी? थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए। कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा है? राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा है बताइए? आपके हिसाब से कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो अच्छी है? स्टाइल, डिजाइन, प्राइस। अच्छा, कपड़े की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट पर आप देखेंगे उसकी स्टाइल कैसी है, और मार्केट का क्या होगा? स्टाइल देखेंगे तो क्लाइंट कहां से आएंगे? तो ये ऐसा है कि समथिंग डिफरेंट, वेरी गुड, बट स्टिल नॉट हैव डिमांड। तो प्रॉब्लम है, डिमांड नहीं है तो बेचेंगे कैसे? तो डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। तो ज्यादातर मार्केट देखना है, तो ज्यादातर ओके, हैव डिमांड, यस, वेरी गुड। तो एक ये उसका रिस्पॉन्स ऐसा है, जब मैं ये काम कर रहा था दाहोद में, तो लोग ऐसा कहते हैं, साहब ऐसा प्रोजेक्ट दिखाइए कि जिसमें मार्केट भी अच्छा हो, प्रॉफिट भी बड़ा हो, ऑर्डर भी मिलता हो, लेबर का भी प्रॉब्लम ना हो, रॉ मटेरियल का भी प्रॉब्लम ना हो, गवर्नमेंट का कोई दिक्कत ना हो, गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती हो। तो मैं क्या कहता था कि क्या आप पूरा लड्डू खाना चाहते हैं? ये वो कोई बिजनेस नहीं। जो मार्केट सारू हो तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो, टेक्नोलॉजी सिंपल हो तो कॉम्पिटिशन हो, કોમ્પિટિશન બહુ જ હોય તો પ્રોફિટ ઓછો હોય। એટલે આ જે સિલેક્શનનું પ્રોડક્ટ છે બધું વિચારીને કરવાનું છે। હવે પ્રોડક્ટ તો સારી હોય, પણ બીજો ક્વેશ્ચન તમારે એ પૂછવાનો છે કે વિચ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇઝ ગુડ ફોર મી, એટલે કે એન્ટરપ્રેન્યોર એન્ડ એન્ટરપ્રાઇઝનું કોમ્બિનેશન કરવાનું છે। હું તમને સરસ બિઝનેસ બતાવી દઉં કે થર્મોકોલ પેકિંગ, અથવા તો અત્યારે ઓર્ગેનિક ફૂડને એક્સપોર્ટ કરો, ફિશને એક્સપોર્ટ કરો, બહુ મોટું માર્કેટ। પણ તમે કહેતો સાહેબ મને ચાલશે નહીં, મને ગમશે નહીં। तुम्हारे what you have to do is to match with you, what is good for you। सो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो तय करते हैं कि रेड कलर का कपड़ा तो है, अभी मुझे येलो लेना है, मुझे 500 रुपए में लेना है, मुझे पार्टी वेयर के लिए करना है। तो आपको बिजनेस सिलेक्ट करने के लिए पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कैसा बिजनेस चाहिए, कितने इन्वेस्टमेंट का चाहिए, कितने टाइप के लोग होने चाहिए, कितना बड़ा उद्योग चाहिए, ये सब आप लिखेंगे, बाद में आप उद्योग देखेंगे। तो ये जो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल लीड यू टू द अपॉर्चुनिटी सर्च। सो इट इज, लेट मी टेल यू, दिस इज ओनली ए मेंटल एक्सरसाइज। अभी आपको कोई सर्वे नहीं करना है, कोई कागज पे नहीं लिखना है, पहले दिमागी एक्सरसाइज करनी है कि क्या करूं, ये करूं, ये करूं। तो इसमें क्या होगा, आपके दिमाग में 4-5 आइडिया आएगा, उस पर काम करिए, 2-3 दिन सोचिए, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, फिर उसमें से 3 निकाल दीजिए, 2 बाकी रखिए, फिर दूसरे दिन 2 रखिए। ऐसे करते करते आपके पास 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे जिसको मैं कहता हूं टेंटेटिव सिलेक्शन आपका हो जाएगा कि इसमें मुझे लगता है कि ये 2-3 प्रोजेक्ट है जो ये मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं। तो पहली ये एक्टिविटी का, और उसके लिए आपको ओपिनियन टेस्ट करना है, लोगों के पास जाना है, मार्केट में जाना है, कस्टमर का इंटरव्यू करना है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को मिलना है, आपके दोस्तों को मिलना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक में खाली लोन के लिए नहीं जाना है, उनके पास काफी अनुभव है, उनके पास जाके पूछिए कि ये इंडस्ट्री में क्या हाल है, आपने लोन दिया है तो क्या सब पैसा भर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो आपको काफी कुछ अनुभव मिलेगा। तो इट इज फाइनली ए मेंटल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। सो लेट अस सी नेक्स्ट। अब क्या क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। वेयर देयर इज प्रॉफिट है कि, अच्छा, प्रॉफिट का एक क्वेश्चन पूछा है कि जहां प्रॉफिट है, मुझे आप ये कह सकते हैं कि अभी कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट नहीं है? मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट है, आप जितना भी सोच सकते हैं, इंडिया में सब प्रोडक्ट है और वो सब प्रोडक्ट में प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपको बनाना है। प्रोडक्ट को कैसे बनाए, कितने प्राइस में बेचे, किस तरह से मैनेज करें, उस पर से प्रॉफिट होता है। तो मेरा एक अनुभव ये कहता है कि प्रॉफिट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी। आपने देखा होगा कि प्रिंटिंग प्रेस और रेस्टोरेंट तो सारे हैं, कई लोग अहमदाबाद में फेल हो जाते हैं, कई अच्छे बनते हैं, कई बहुत ग्रोथ होते हैं। इसका मतलब ये एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट करता है, वही मार्केट है, वही अहमदाबाद है, वही लोग है, फिर भी एक सफल होता है, दूसरा नहीं होता है।
अच्छा, तो लेट अस सी सम प्रोडक्ट आइडिया। कैन वी गो टू द नेक्स्ट रुतिबेन? हाँ, तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। आप एक अपॉर्चुनिटी सोचिए आप क्या करना चाहते हैं, उसमें से आप सिलेक्ट करना है। अभी टाइम नहीं है लेकिन उस पर हम काम करेंगे। एजुकेशन सेक्टर, अब आप ट्यूशन कर सकते हैं घर बैठे बैठे। हमारा एक दोस्त है अकाउंटिंग का ट्यूशन करता है, इंग्लिश का ट्यूशन फॉरेन में करते हैं, 1 घंटे का $3 लेते हैं, पूरा पैसा कमाते हैं। ट्यूशन क्लासेस करते हैं, एजुकेशन की इक्विपमेंट, अच्छी नोटबुक्स, अच्छी स्टेशनरी, अच्छा फर्नीचर नहीं है। एंटरटेनमेंट बिजनेस इज गोइंग टू बी बिग बिजनेस। लोगों के पास अब एंटरटेनमेंट के लिए जगह नहीं है, वीडियोस बना रहे हैं, एनवायरमेंट प्रोडक्शन, केमिकल बनाना, एनवायरमेंट मास्क बनाना। एग्रीकल्चर इज ए बिग सेक्टर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, वेजिटेबल अभी तो आप बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, कोल्ड स्टोरेज, आईटी सर्विसेज एंड मोबाइल सर्विसेज। आई थिंक मोर टेक्निकल पीपल कैन डू दैट। सोशल एंटरप्रेन्योर नॉट, ऐसा है कई लोगों को सोसाइटी में हेल्प, सोशल को हेल्प करनी है तो वो अपना फॉर प्रॉफिट करके सोसाइटी को। मेरा एक बंदा था, वो कुरियर सर्विस चालू किया है सूरत में, लड़की है, तो उन्होंने सोचा मैं डीफ एंड डम लोगों को नौकरी दूंगा, तो अच्छा 15 लोगों को नौकरी दिया और कुरियर सर्विस चालू की है। देन फ्रेंचाइजिंग, अगर आप तैयार बिजनेस लेना चाहते हैं तो पैसा है तो फ्रेंचाइजिंग लीजिए, दूसरे का बिजनेस चालू कर सकते हैं। इंडस्ट्री बेस्ड, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हेल्थ सेक्टर, उसके बारे में सोचिए। सी वेल, दरिया के अंदर इतनी सारी चीजें पड़ी हुई है सेफ में। मेरे अंकल इसरो में थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था 15 बिजनेस इन स्पेस। अब देखिए, अब स्टेशन बना रहे हैं स्पेस में, जहाँ चांद पर जाने से पहले लोग बैठेंगे, खाएंगे, आराम करेंगे, जाएंगे। दुबई ने तो दरिया के अंदर मकान बनाने का काम किया है। डिफेंस, अब गवर्नमेंट डिफेंस के प्रोडक्ट बहुत दे रहे हैं। सिक्योरिटी प्रोडक्ट के काफी स्कोप है। हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल, मेडिकल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, आर्ट टूरिज्म, बहुत बड़ा मार्केट है। एनर्जी सेक्टर, सोलर पावर, ये कुछ बहुत। आज अदानी ने कितना बड़ा सोलर का प्लांट डाल दिया, देखिए। हेल्थ सेक्टर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर नाउअडेज। हेल्थ सर्विसेज, आज आपने देखा होगा कि ये पीपी जो किट्स है उसको डिस्पोज करने के लिए 1 किलो के 800-1000 रुपया ले रहे हैं। हॉस्पिटल को रोज को 10,000 लेना पड़ता है। हमारे 2 बंदे हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं हेल्थ की, एक रिकलेक्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल से दे रहे हैं। लीनियन बदलना, उनको सप्लाई करना, ये सब। लाइफस्टाइल एंड फैशन, एक हमारी एंटरप्रेन्योर है मुंबई में, लाइफस्टाइल फैशन, लोगों को फैशन कैसे करना है, क्या पहनना है, बड़े बड़े एक्टर्स को दे रहे हैं। बायोटेक इज अनदर एरिया, सोशल सर्विसेज, मीडिया, टीवी, जो कितनी सारी है। आप हर एक सेक्टर सोचिए। अब आपको करना क्या है, अभी एक सेक्टर सिलेक्ट करिए, इसमें से एक सेक्टर आप लिख दीजिए कि आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं। फैशन, गारमेंट, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, बिजनेस। खाली आपके नोटबुक के अंदर एक सेक्टर लिख दीजिए आपका। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना जरूरी नहीं है, इंडिया हैज प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में हॉस्पिटलिटी, होटल, टूरिज्म, लीजर ट्रैवल, वीकेंड टूरिज्म, कन्वेंशन, कोई अच्छी कन्वेंशन सेंटर नहीं है, ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटी देने के लिए लोग नहीं है। हेल्थ सर्विस की मैंने बात कर रही, हम लोग अभी सोच रहे हैं चाइल्ड केयर और सीनियर सिटीजन का बहुत बड़ा स्कोप है। सीनियर सिटीजन एनआरआई सेंटर अमेरिका में तो बहुत अच्छा चल रहा है। जरूरी नहीं है आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, बिजनेस कंसल्टेंसी, स्टार्टअप लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिए। इन्फॉर्मेशन क्या देंगे, कहाँ से लोन मिलेगी, कहाँ से लीगल एस्पेक्ट है वो दीजिए। वॉशिंग, हमारा एक बंदा है, उन्होंने गारमेंट इंडस्ट्री में कपड़े धोने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। हाउसकीपिंग, काफी इंस्टीट्यूट और ऑफिस में हाउसकीपिंग सर्विस दे रहा है, उन्होंने 700 महिलाओं को एम्प्लॉय किया है। होम डिलीवरी, ऑनलाइन मार्केटिंग, आप जानते हैं सिक्योरिटी सेफ्टी बात कर लिया, इन्वेस्टिगेटिंग सर्विसेज। अब मार्केट सर्वे के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए, ट्रेंड क्या है वो देने के लिए एडवाइजर बन सकते हैं आप। फूड कैटरिंग सर्विस कर सकते हैं। पार्टी, कॉलेजेस में पार्टी होती है, आप कॉलेज में पार्टी करके पैसा कमा सकते हैं। प्रोफेशनल लैंग्वेज आई थी अभी, अब जब हम फ्रेंच में सेमिनार किया था तो फ्रेंकोफोन कंट्री के लिए सेमिनार किया, तो जब फ्रेंच की इंटरप्रेटर आई थी तो एक दिन के हम 5,000 रुपया दे रहे थे, 3 इंटरप्रेटर आए थे। रिपोर्ट प्रिपरेशन, रिसर्च करना है, रिसर्च सर्विसेज इज गोइंग टू बी अ बिग आइडिया। पब्लिक रिलेशन, नेटवर्किंग एजेंसी बनाइए आप, घर बैठे बैठे लोगों को हेल्प करिए, क्या करना है, सेक्रेटरी सर्विस दीजिए, नेटवर्किंग सर्विस दीजिए, मार्केट सर्विस कर दीजिए, वर्क फ्रॉम होम सर्विस आए, तो इतनी सारी है। अब ये आइडिया में से अब आपके दिमाग में, आपके जो बैकग्राउंड है इसका हिसाब से आपके नोटबुक में, आपके दिमाग में एक कोई भी फैक्टर या आइडिया आप नोट डाउन कर लीजिए, तो आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी।
नोट डाउन करिए, मैं फिर आपको बोलता हूँ क्या करना है उसका। मैं चाहता हूँ जितने भी होंगे 30-40 लोग, वो अपना कौन सा प्रोजेक्ट इनके दिमाग में चल रहा है, अभी ये फाइनल नहीं है, ये खाली आइडिया है, ये हमारी जर्नी शुरू करने से पहले हम दार्जिलिंग जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं आप, अभी वहां पहुंचे नहीं है आप, तो ये आइडिया आप फिक्स कर दिए, आइडिया तय कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, ओके सर। अब ये जो है ये भी हो गया, उसको भी जाने दीजिए, चलो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज लिविंग ए फ्यू इयर्स ऑफ योर लाइफ लाइक मोस्ट पीपल वोंट, सो दैट यू कांट स्पेंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ लाइक मोस्ट पीपल कांट। शुरू में बहुत दिक्कत होगी, बहुत मुश्किल होगी, लेकिन फ्यूचर में आप अपनी दुनिया बनाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि एंटरप्रेन्योर्स आर फ्रॉम दिस वर्ल्ड ओनली। एंटरप्रेन्योर इसी दुनिया से हैं, कोई ऊपर से नहीं आया है, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड। एंटरप्रेन्योर अपनी एक नई दुनिया बनाता है, हर एक एंटरप्रेन्योर अपनी नई नई दुनिया बनाता है। मार्क जुबर ने अलग बनाया है, अंबानी ने अलग बनाया है, हमारे यहाँ अदानी ने अलग बनाया है, यहाँ लोग अलग बनाते हैं, तो अपनी दुनिया अलग बनानी है। तो ये काम फ्यूचर के लिए अब घबराना नहीं है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, हाँ, अब प्रॉब्लम क्या होगा? मैं, ये जरूरी है कि हम ट्रैवल में जाते हैं तो पूछ भी लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम से भी आपको थोड़ा अवेयर कर देता हूँ। एक तो लैक ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग कैपेबिलिटी। एंटरप्रेन्योर कूद पड़ता है, पूरी तैयारी नहीं करता है, अपनी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाता है, अपनी स्किल नहीं बनाता है, तो इसको मैं कहता हूँ प्री मैच्योर डिलीवरी। जैसे बच्चे को बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा, बराबर उसको खाना नहीं मिला होगा, प्रेग्नेंट विमेन ने बराबर ध्यान नहीं रखा होगा, तो प्री मेच्योर। तो ऐसे कई बार एंटरप्रेन्योर जब जन्म लेता है तभी से उसको डिफेक्ट हो जाती है। दूसरा है इनएडिक्वेट सर्च एंड असेसमेंट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। जैसे उनको पसंद है वो कूद पड़ता है, होप अगेंस्ट होप। ये तो बहुत अच्छा है, एंटरप्रेन्योर आर्गुमेंट करता है कि मेरा प्रोजेक्ट तो एकदम यूनिक है, वो बिक जाएगा, लेकिन वो एसेस नहीं करता है, मार्केट सर्वे नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, कस्टमर के पास नहीं जाता है, अपने आप ही सोच लेता है। तीसरा है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। खाली गिव मी शेड एंड मनी, बट कौन सा प्रोजेक्ट करे, कितना मैं बनाऊंगा, कितना मैं करूंगा, क्वालिटी कैसे रखूंगा, पैकेजिंग कैसे करूंगा, डिलीवरी कैसे करूंगा, मेरे क्लाइंट कौन से होगा, उनकी नीड क्या है, वो खरीदेंगे तो कितना पैसा देंगे, वो समझे बिना वो कूद पड़ता है। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर टू बी सेंसिटिव टू आउटसाइड एंड बिजनेस वर्ल्ड। वो अपना काम करता है तो दरवाजा बंद कर देता है, अपने कहते हैं ना कुआं ना डेढ़ का बराबर, आंखें खुली रखती है। हमारा एक एंटरप्रेन्योर था, वो रिसर्च करता था, 3 साल तक रिसर्च करके जब प्रोजेक्ट लेके बाहर निकला तो पता चला कि ऐसी प्रोजेक्ट तो मार्केट में ऑलरेडी आ गई। आप सोचते होंगे ये मैं प्रोजेक्ट करूंगा, बट जब तक आप लगाएंगे तो बाकी 15 लोग आ जाएंगे। तो आंखें खुली रखिए, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट करके बाहर एक घूमने निकलिए, मार्केट में देखिए कि क्या हो रहा है, कितने लोग हैं। नेक्स्ट इज योर ओनली प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। एंटरप्रेन्योर को, एक विजय भाई हमारे दोस्त हमेशा कहता है कि एंटरप्रेन्योर फॉल इन लव विद प्रोडक्ट। और आपको पता है जब आप लव में हो जाते हैं तो अंधे हो जाते हैं, कुछ दिखते ही नहीं है आपको, बस वही लड़की दिखती है, वही दिखता है। तो एंटरप्रेन्योर जब प्रोडक्ट के बारे में सोचता है तब वो अंधा हो जाता है, मार्केट के बारे में नहीं सोचता, लीगल के बारे में नहीं सोचता, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचता, डिलीवरी के बारे में नहीं सोचता, पेमेंट के बारे में नहीं सोचता, रिकवरी में, तो ये सब सोचता, खाली प्रोडक्ट पर नहीं देखना है। लैक ऑफ कोपिंग एबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो दिक्कतें आने के बाद छोड़ देना, इनिशिएटिव एंड परसिस्टेंट। आपने गुजराती में कहेवत है, आदू खाईने पाछળ પડ્યા રહેવું। कोई लोन नहीं मिला तो छोड़ नहीं देना है। हमारी एक एंटरप्रेन्योर थी, वो बैंक में लोन लेने के लिए गई तो उन्होंने कहा आज टाइम नहीं है, नहीं आना। तो बोला साहब वो क्या, आप बोलिए कब आना है, फिर से गई तो बोलता है आज भी टाइम। 5 बार गई तो वो समझ गए कि लड़की मुझे छोड़ेगी नहीं, तो उनके 5 लाख का लोन दिया और स्टेपलर इनका फैक्ट्री में लगाया, धोलका में है। सो परसिस्टेंट, कोपिंग एबिलिटी, घबराना नहीं, आप रिजेक्ट हो जाएंगे, घर से भी रिजेक्ट होंगे, बाहर से भी रिजेक्ट होंगे, तो ये कैपेसिटी चाहिए। तो आपको अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी है। तो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। तो रिस्क की जो बात कर रहा था, 4-5 टाइप के रिस्क है, आपको एसेस करना होगा। टेक्नोलॉजी रिस्क, प्रोडक्ट फेलियर, मार्केट फेलियर, फाइनेंशियल रिस्क एंड मैनेजमेंट रिस्क। अब टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी से जा रही है कि आप सोचेंगे लेकिन 3 साल में टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो क्वालिटी और आप प्रोडक्ट लाने के लिए कितने टाइम में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे वो देखना है।
टेक्नोलॉजी का रिस्क असेस करना है, प्रोडक्ट फेलियर लाइफ साइकिल होता है, तो लाइफ साइकिल में आप एंट्री टाइम, अब जब प्रोडक्ट की मार्केट खत्म हो जा रही है आप तब जाएंगे तो आपका मार्केट जाएगा। जब प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, मार्केट ट्रेंड बढ़ रहा है, नई नई प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है, तब आपको एंटर करना है। जो ऑब्सोलेट प्रोडक्ट हो रही है उसमें नहीं जाना है। मार्केट फेलियर कंपटीशन के हिसाब से और डिमांड रॉन्ग एस्टिमेशन, समझता है डिमांड है लेकिन होता नहीं है, तो कंपटीशन भी आती है। तो कंपटीशन के सामने कॉम्पीट करने के लिए एक दो सेंटेंस है, इफ यू वांट टू कॉम्पीट विद योर कॉम्पिटिटर, नो योर कॉम्पिटिटर और ज्वाइन हैंड्स विद योर कॉम्पिटिटर। थर्ड, फाइनेंशियल रिस्क, अपने इतना कम पैसा लगाते हैं, बाहर से पैसा लेते हो तो लो इक्विटी बेस हो जाता है, कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है और फाइनेंस का कंट्रोल नहीं, इतना खर्चा हो जाता है कि शुरू होते होते ही पैसा खाली किस्सा थी जाए। ये तो एटर्नल प्रॉब्लम है, जब भी एंटरप्रेन्योर बोलता है तो पैसे की प्रॉब्लम रहती है, दैट मीन्स मैनेज, पैसा बराबर मैनेज नहीं हो रहा है। और लास्ट में मैनेजरियल रिस्क, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड डेलीगेट, सब अपने काम करते हैं, मॉनिटर नहीं करता है काम हुआ कि नहीं, प्लान बी नहीं रखते हैं, देखते नहीं है कि हुआ कि नहीं, मैंने ईमेल भेज दिया मिल गया नहीं मिलता है, मैंने ऑर्डर भेजा मिल गया माल, कहीं प्रॉब्लम हो गया। तो मॉनिटरिंग करना है, प्लानिंग करना है और डेलीगेट करना है। तो ये सब रिस्क आपको एसेस करना है, उसकी काफी कुछ टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, तो आपको ये रिस्क भी देखना है। तो ये पूरा एक पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगा, तो इसके बाद आपकी जर्नी शुरू के लिए आप तैयार है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, जाने दो इसको, जाने दो, नेक्स्ट। हाँ, अभी आप सब सोचते हैं, लेकिन मेरा एक अनुभव ये है कि ये यंग लोग जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं उनको कुछ ब्लॉक है। एक तो वो लोग बहुत लेजी है, खाली सोचते रहते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं तो एक्शन नहीं करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट थिंकर, दे आर एक्टिंग। एक बार शुरू करो, कूद पड़ो, छोटे स्केल पर करो, फेलियर हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी बात से शुरू करो। देन नो आई फॉर अपॉर्चुनिटी, आप कौन सा प्रोजेक्ट करूं, कौन सा अच्छा है देखते रहते हैं, लेकिन नया चश्मा पहनो, नई अपॉर्चुनिटी देखो। नो विजन और पैशन, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या विजन है। आप प्रोडक्ट पसंद नहीं करते, एंटरप्रेन्योर के लिए गोल नहीं होता है, विजन होती है, कहाँ पहुंचना चाहते हो देखिए। टू मच एकेडमिक, खाली एकेडमिक से, खाली थियरी से, मार्केटिंग प्रिंसिपल, डिमांड पी 4 से नहीं चलने वाला है, उसको आपको प्रैक्टिकल ज्ञान लेना पड़ेगा। तो आप एंटरप्रेन्योर को मिलिए, मेंटर को मिलिए, एक्सपीरियंस आदमी को मिलिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम भरिए, अब तो ऑनलाइन भी कितने सारे प्रोग्राम है। टू बिजी टू एंजॉय लाइफ, अब आपकी यूथ ऐसा है कि एंजॉय लाइफ करनी अभी बाद में करेंगे देखिए, तो भी ये काफी लोग इसमें मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस के बाद भी लोग एंजॉय लाइफ करते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। टू ऑर्गेनाइज, एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज, दे आर नॉट परफेक्ट पीपल, कुछ ऐसे भी अनसर्टेनिटी है तो भी उसको कूदना पड़ेगा। एंड दे एंजॉय कंफर्ट जोन में, जो कुछ भी करना हो गुजराती खाना ही खाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, यही करना है। तो एंटरप्रेन्योर को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे ट्रैवल करने जाते हैं तो नया अनुभव मिलता है, तो कंफर्ट जोन। एंड आपको देखना है, एनवायरमेंट को देखना है, वर्किंग अलोन, अकेले काम नहीं करिए, आपका टीम बनाइए। ऐसा कहते हैं सफल होने के लिए एंटरप्रेन्योर अपनी टीम बनाता है जो अचीवमेंट ओरिएंटेड है, जो इनको हेल्प करने वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, टेक्निकल वाले हैं, मार्केट वाले हैं, दोस्त हैं तो कुछ जानते हैं, तो टीम बनाइए, उनको फॉलो अप करिए। तो नेटवर्किंग है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर है, अलग अलग ब्लॉक है, तो आपको ब्लॉक को ओवरकम करना है, हर्डल को निकालना है। तो इसके बाद अब आपकी जर्नी शुरू होगी। तो हम देखते हैं आप क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से टाइम अब खत्म हो रहा है। नेक्स्ट, तो अब आपको ये चिट्ठी बनानी है, आपका पासपोर्ट बनाने के लिए मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए पासपोर्ट बनाइए। आप आपका कागज लिखिए, उसमें लिख दीजिए कि आप ट्रैवलर है, आप एंटरप्रेन्योर है, आपका नाम लिखिए और फोटो लगाइए। ये पासपोर्ट आपके कपबोर्ड में रखना है, आपके दोस्तों को देना है, तो आपको याद रहेगा आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी जर्नी करना चाहते हैं। उसका मैं कारण बता रहा हूं, ये क्यों बना रहा हूं। तो सबसे पहला है डेस्टिनेशन, आप एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं, आपका क्या गोल है, विजन है, कौन सा प्रोडक्ट करना है वो नहीं, क्या करना चाहते हैं, आपका मोटिवेशन क्या है। सोशल बेनिफिट चाहिए, फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए, नाम कमाना है, यूनिक करना है, इनोवेटिव प्रोडक्ट करना है, कहां तक पहुंचना है, इंडस्ट्री लीडर बनना है, कुछ नया काम करना है, अपने एरिया में काम करना है, स्टेट लेवल पर काम करना है, नेशनल लेवल पर काम करना है। तो अब लिखिए कि आपका गोल और विजन क्या है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी, आंखें बंद करके आप देख सकते हैं, सफलता देख सकते हैं कि मैं यहां पहुंच गया। ऐसा कहते हैं सफल होने के लिए सफलता देखनी पड़ेगी, सफलता विजुलाइज करनी पड़ेगी।
तो आप ऐसा सोचिए मैं एंटरप्रेन्योर बन गया हूं और आपकी सफलता देखिए, कहां पहुंचे, कितने कारीगर है, किन से बात करें, कहां फैक्ट्री लगाई है, कैसा लेआउट है, कैसा मशीन है, तो इससे आपका विजन का यहाँ जवाब मिल जाएगा। दूसरा है वाई, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एज एन एंटरप्रेन्योर, वाई ये बनना चाहता है, आपका पैशन क्या है, ये जो आप गोल और विजन पहुंचना चाहते हैं वहां पैशन और स्ट्रेंथ क्या है। जैसे आप जाना चाहते हैं यूएसए या जाना चाहते हैं दार्जिलिंग, क्यों जाना चाहते हैं, आपको नेचर देखना था, आपके फॉरेन देखना था, हिस्ट्री देखना था, तो इसी तरह से वाई, पैशन लिखिए, स्ट्रेंथ लिखिए कि मुझे लोगों से साथ अच्छा बनना चाहता हूँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी है कम्युनिकेशन है, मैं लोगों को कन्विंस कर पाता हूँ, मैं घबराता हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी में वीक हूँ, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों लिखिए आप इसमें। थर्ड है माई रूट, अब ये मैं रूट है जो एंटरप्रेन्योर और गोल विजन पर पहुंचना चाहूंगा, मेरा रूट कौन सा है, तो मैं कहां से जाऊंगा, तो ये जो आपने सेक्टर मैंने बोला कौन सा बिजनेस करना है उसका सेक्टर लिख दीजिए, गारमेंट में जाना चाहता हूँ, सर्विस में जाना चाहता हूँ, हॉस्पिटलिटी में जाना चाहता हूँ, ट्रैवल में जाना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी में जाता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन, ई कॉमर्स, क्या करना चाहता हूँ वो वहां रूट लिख दीजिए। एंड देन पासपोर्ट की जैसे वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी लिखिए, क्योंकि जब तक टाइम बाउंड कमिटमेंट आप नहीं करेंगे तब तक आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, 1-2 साल चला जाएगा। तो लिखिए कि स्टार्ट देख, मैं कल से शुरू करूंगा ये सोचने के बारे में एंटरप्रेन्योर करे बनूं, या तो अगले महीने से करूंगा, तो लिख दीजिए 12 जून इज ए स्टार्टिंग डेट। अब ये कब पूरा होगा आपको पता नहीं है, लेकिन ये रिन्यू करना पड़ेगा हर बार, क्योंकि आप दिक्कत में हो जाएगी, आपकी कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं कब मॉनिटर होगा। 12 जून को मैंने सोचा था कि मैं गारमेंट में जाना चाहता हूं, मेरा पैशन है कि डिजाइनिंग करूं, मेरा गोल है कि गारमेंट में सबसे बड़ा नया डिजाइन, कुछ फैशन वेयर करूं, कुछ ऑफिस वेयर करूं, कुछ अंडर गारमेंट बनाऊं। तो रिन्यू कब करूंगा, जुलाई में करूंगा, अगस्त में करूंगा, तो पता चलेगा कि मैं कितने स्टेशन पर पहुंचा हूं, कहा। तो रिन्यू कितने कितने टाइम पर करेंगे आप, हर मंथ करेंगे, हर क्वार्टर करेंगे, हर ईयर करेंगे, और इसमें लास्ट में ये जो पासपोर्ट की अथॉरिटी होती है कौन है, तो अब आपको अप्रूविंग अथॉरिटी के लिए कोई मेंटर या गॉड फादर पकड़ना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप गोल हासिल करना चाहते हैं तो आप ढीले पड़ जाते हैं, तो अगर आपका गोल और विजन दूसरे किसी को, गॉड फादर को, मेंटर को बताएंगे, तो वो आपको पीछे पड़ जाएगा, अरे क्या हुआ, तूने बोला था कल ये करना है, तुझे बोला था ये एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये ऑटोमेटिक प्रेशर आपको हो जाएगा। तो आप किसी का नाम लिखिए, आप कोई मेंटर है, आपको कोई मेंटर चाहिए तो हम लोग और कुटी बहन आपको हेल्प करेंगे, आपके गॉड फादर है तो मेंटर लिखिए और गॉड फादर लिखिए। तो ये पासपोर्ट आपके हाथ में रखिए, ये इसलिए बनाना है कि आपके मेंटल दिमाग में ये आइडिया हमेशा हैमर करना चाहिए। जैसे कोरोना 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 करते हुए आज सबके दिमाग में कोरोना आ गया है, तो मैं चाहता हूं कि एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है, इतना हैमरिंग आपके दिमाग में हमेशा चलता रहे। तो ये इसके बाद की जर्नी आपकी शुरू होगी, तब आप एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट मेंटर के साथ काम करके जैसे में जो प्रोसेस कहा है, पूरी जर्नी बताइए, इसके हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये जर्नी शुरू करें। आई कैन टेल यू दिस इज अ वंडरफुल जर्नी। और मैं तो एंटरप्रेन्योर के बिजनेस में हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर था, ट्रैवल एजेंसी कर रहा था, लेकिन मेरा पार्टनर फॉरेन चला गया तो मैंने ट्रैवल एजेंसी अभी बंद कर ली, 5 करोड़ का टर्नओवर था, लेकिन मेरा बिजनेस है एंटरप्रेन्योर बनाना, एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करना। तो मैं आपको हेल्प करूंगा, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है, मैं आपके गाइड करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई वांटेड टू गिव सो मेनी थिंग्स, तो थोड़ा शायद जल्दी हो गया होगा, मैंने काफी कुछ स्लाइड सिंपल कर दी है आपके लिए। और आप कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज आस्क, I'll be happy to answer. Thank you very much, Kruti Ben. If there are questions, you can take. We overshoot it for 5 minutes. Thank you so much, sir. It was a wonderful session, and it is always आपको सुनना. It is an indeed pleasure, and you are institution in yourself, right? So thank you, sir. It was very nicely done, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने लोगों को समझाया कि how you can prepare yourself as an entrepreneur. But request participant to do some homework. Yes, please prepare your passport and put your passport on social media, and you can tag me and sir for that. So that would be our pleasure if you can do it. And किसी को भी कोई भी क्वेश्चन सर को पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड हम आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे, प्लीज।
मैंने जो बात की है वो सब बड़ी बड़ी बातें दिखाना, करोड़पति बन जाना नहीं बताया, बेसिक से शुरू करना है. इट इज सेड दैट इफ यू ले योर फाउंडेशन स्ट्रांग, you can True. build empire on it. True, sir. Any questions? Any questions?